Good afternoon to all of you. Am I Good audible? afternoon. Okay. Screen visible है सभी को? Hello. Yes. Is my screen visible to all? Yes, Yes, ma'am. yes, Okay. 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 So let's start. Our topic for today is ERP hidden costs. So अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, we have just started our unit 2 of ERP and we have seen implementation life cycle in the previous two lectures. तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ कॉस्ट डिस्कस की थी कि आपको हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड कुछ कॉस्ट आ जाएं, कुछ प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है जो आपको एनालिसिस टाइम पे प्रीवियसली एनालाइज करनी पड़ती है जब आप अपने ERP वेंडर्स चूज करते हो, और कुछ और मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह कंसिडर करके आप फिर अपना प्रोजेक्ट जो है ERP प्रोजेक्ट वो पर्टिकुलरली उसे इनरोल करते हो या फिर स्टार्ट करते हो। तो कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं हमारे पास विच आर नोन एज हिडन कॉस्ट. Those costs are also involved in our ERP, but generally any ERP vendor or organization may not consider those. So we will talk about those type of cost in this lecture. So hidden cost, the ERP selection team have met with various vendors, analyzed everything possible over the month, and then have a selection. Okay, they have given them a price, an estimated cost of implementation, what are the tools that are going to be used, and to create a new or powerful ERP system. So all of these things are already discussed, but some surprises may come in this form that may not likely to be similar to the cost that we are expecting our ERP to cost about. तो अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ और आई हैव प्लान दैट एक पर्टिकुलर इतने डॉलर्स का मेरा एक ERP जो है वो बिल्डअप हो जाएगा, बट at the end or meanwhile during the implementation I can observe that there is some, I will not say there would be some, there can be a particular amount of difference that we can face while going through the actual implementation of the ERP. So those type of costs are termed as our hidden cost. So generally what we consider is the initial software cost. This is what we are considering while we are choosing the vendors and while they are giving us their views on that particular type of software and the services only. So we just consider the initial cost, initial software cost, and the initial hardware cost only. But there are a number of costs that are involved bottom line also. That may be your dual system requirements. That may be your, if you want to add on any annual support, any maintenance, or any certain cost which involved with that particular vendor, then that may be there. Data migration cost can be there, uh, any sort of debugging or patch application cost, your software updation cost, your management cost. If in case you are going to scale your system and there might become any certain increase in your staff, in your technical staff, that may also increase the cost. If the business is facing certain type of redefinition or disruption, so in that case also. So generally हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे ही आपका हो सकता है आप by the time implement कर रहे हो, आपके फर्स्टली आपके सिस्टम में, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में अगर कोई चेंज आ जाता है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तब हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं. फर्दर आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वहां पर अगर आपके पास कोई नई ऐसी फैसिलिटी आई ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस जिसके कारण आपको कुछ रिसोर्सेज में इम्बेडमेंट करना पड़ा, दैट मे बी इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज और योर ह्यूमन मैनेजमेंट कोर्सेज. तो आपके ह्यूमन रिसोर्स के जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर आपने उनमें भी कोई अमेंडमेंट की है, देन यू हैव
you can face any increase in the cost in that case also. Many times जब एक ERP implement हो जाता है तो we have discussed कि एक बार जिस vendor से आप लोग वो ERP buy कर रहे हो, that will eventually come at your place, will take your inputs और आपको एक वैसा ERP बना के देगा. It will deploy it, implement it, and then it will give a certain ERP implementation related training to a concerned person at your organization, जो कि तब उस ERP का इंचार्ज बन जाएगा. Like any of those things which are related to the implementation, any certain queries that person may know. So you don't have to contact directly to the vendors. You can firstly go to that person with your problem, and he may or might solve your problem as per his training. तो वहां पर हमारे पास आ जाती है वो ट्रेनिंग कॉस्ट या फिर कुछ कंसल्टेंसी कॉस्ट जो है. दोज ऑल्सो में वेरी कि जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपने देखा कि हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टी फंक्शनल बन चुका है. तो उस टाइम पे आपको हो सकता है किसी कंसल्टेंसी की या ट्रेनिंग की ज़रूरत हो जो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में करवानी पड़े. अब वो ट्रेनिंग ERP इंचार्ज के लिए भी हो सकती है. फर्दर जो लोग भी जितने डिफरेंट मॉड्यूल्स उस ERP को यूज करेंगे, उनको उनकी सर्विसेज के रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वो मिलनी चाहिए. कि अगर एक कंपनी है, कंपनी में एक ERP सिस्टम चल रहा है, इट इज वी कैन से एन IT कंपनी, तो वहां पर जो आपका टेक्निकल स्टाफ है, वेदर योर प्रोजेक्ट, वी कैन से द सिस्टम डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स हैं, एनालिस्ट हैं, उन सबको उनके डोमेन के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग मिलेगी. उनको उनकी सबकी जो भी फंक्शनैलिटीज हैं, जो भी उन लोगों को हम लोग फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उस ERP के अंदर, उनके रिलेटेड ट्रेनिंग मिलेगा. फर्दर जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग मिल जाएगी. देन एज वी गो अप इन द हायरार्की, दैट सिस्टम मे गो कॉम्प्लेक्स and that type of training may be given to those persons. तो ये हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन ने पहले सोचा कि नो, दैट्स ओके, वी आर एन IT कंपनी, we can just purchase an ERP and we can go by that flow. But later on they may feel that its interface may not be that much familiar कि हमारे जितने भी persons involved हैं, who are our employees or customers, they can actually deal with that particular type of software. So in that case, that training is must to make that ERP successful. फर्दर इफ यू वांट एनी सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, जब भी हम लोग अपने इम्प्लीमेंटेशन साइकिल में इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर आपको गैप एनालाइज करना है, री इंजीनियर करना है, फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड देन अगेन यू हैव टू टेस्ट, इम्प्लीमेंट इट, एंड देन अगेन यू हैव टू चेक द गैप्स. तो उन सारे टाइम पे हो सकता है आपको कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो गैप में एनालाइज हों, जो कि आपने पहले कंसिडर नहीं की थी. So those type of customizations may result in your increase in your cost. Further सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, अगर आप चाहते हो कि आपका सॉफ्टवेयर है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विसेज आपको दे रहा है, बट यू वांट टू इंटीग्रेट इट विद एनी थर्ड party software which can provide you certain additional analytics or maybe decision support services. So उस केस में भी इंटीग्रेशन के टाइम पे हो सकता है हमें और ज़्यादा कॉस्ट जो है वो फेस करनी पड़े. So these type of cost, these are not the fixed one that only these type of cost will be involved in the hidden cost. These might increase in their number, or might face some lesser number of hidden cost in our ERP system. So it may change according to the ERP implementation that we are handling with. Okay, so some important scenarios which generally came up and we do not consider while considering our ERP implementation are, first is your labor cost, then training cost, testing, retesting, and testing again, the cost involved in that, re-engineered processes, employee resistance to adopt a new ERP, your customization and integration, customer dissatisfaction, hoped for cost reductions, and ongoing support and maintenance cost.
सो इतने तरह की कॉस्ट जो है वो हमें हो सकता है हम लोग पहले कंसिडर ना करें, बट लेटर ऑन वी फेस इट इन आवर सिस्टम। ओके, राइट। तो हम लोगों ने अब तक जितना भी इन 3 स्लाइड्स में पढ़ा है, आर ओके, एनीवन इज हैविंग एनी कंफ्यूजन इन दैट? कमेंट सेक्शंस में। यस, आर वी क्लियर टिल नाउ? ओके, वेरी वेल। सो now let's just try to make this an interactive session, because अब हमें पता है कि ERP है क्या, ERP को implement कैसे करना है। Now if I'm going to give you some terms, labor cost is there, so what comes up to your mind, what you are thinking, that what type of labor cost might involved in any ERP system? We can just think of any example like our college ERP system or ERP system involved in any manufacturing organization maybe, और वहां पर हमें कौन कौन से किस तरीके के लेबर कॉस्ट जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस। ओके, सो आंसर्स फ्रॉम योर साइड फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। यस, द फर्स्ट वन इज labor cost in the hidden cost involved in the implementation of ERP. You can write it or you can unmute yourself and speak. Yes, anyone? What will be there in your labor cost? Workforce involved in executing the ERP. ओके, जोबरा जोबराज, आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो? Like I don't get the word execute here. Execute means to run that, maybe. Actually, what happens here is just at the labor level when we talk, we say कि हम लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ईआरपी डेवलप करवाना है, ठीक है। लेकिन ईआरपी डेवलप करवाने से पहले इफ वी टॉक अबाउट द इनपुट्स, एक्चुअली जब भी आपको ईआरपी इम्प्लीमेंट करवाना है तब आपको कुछ ना कुछ इनपुट्स देने होंगे उन वेंडर्स को, ताकि वो उसी टाइप का ईआरपी जो है डेवलप कर सके, राइट। अब वो इनपुट्स जो है वो इस फॉर्म में भी हो सकते हैं कि सपोज वो चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं आपसे, ओके, सैलरी मैनेजमेंट इज रिटन। हम लोग एक केस लेते हैं कि हमारे पास हमें क्या चाहिए कि मुझे, इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ दिस सैलरी, ठीक है, मुझे सैलरी में से ईआरपी में एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो मुझे एक रिपोर्ट बना के दे। रिपोर्ट भी नो, रिपोर्ट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ टेबल, रो एंड कॉलम्स का एक कोई भी कॉम्बिनेशन, एक आपका डेटाबेस हो सकता है। तो मुझे सैलरी में एक ऐसा रिपोर्ट चाहिए जो मुझे बताए कि एक सॉर्टेड ऑर्डर में जितने भी एम्प्लॉयज यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस भी डेजिग्नेशन पे हैं, उनकी सैलरी लास्ट 5 इयर्स में किस पैटर्न के साथ इंक्रीज हुई है, उसका एक टेबल चाहिए, ठीक है। सो उस टेबल में
रो वाइज अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो सारे एम्प्लॉयज आएंगे। इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉलम्स, तो कॉलम्स कुछ ऐसे हो सकते हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी में भी, एंड डेजिग्नेशन, then their salary, if I would say year wise, ठीक है, salary 2015, salary 2016 and so on till 2020 we can say। हमारे पास इतने कॉलम्स आ जाएंगे। देन द interesting pattern that we can get from here is from those salaries that we are getting। अब उन सैलरी में से आप इंडिविजुअल पर्सन की ग्राफ बनाना चाहते हो कि किस तरीके से उसने इम्प्रूव किया है, कितना परसेंटेज इम्प्रूवमेंट हुआ है उसकी सैलरी में अब तक। इस तरह के आपको बहुत सारे एनालिसिस मिल सकते हैं। एक इंडिविजुअल, हम ये भी कर सकते हैं कि मेरे पास सपोज हम बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर डेजिग्नेशन है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर एक डेजिग्नेशन आ गया मेरे पास, एंड विद इन दिस डेजिग्नेशन मेरे पास 10 एम्प्लॉयज हैं जो इसी डेजिग्नेशन से हैं। अब अगर मुझे एक ऐसा ग्राफ चाहिए जिसमें उन 10 के 10 प्रोजेक्ट मैनेजर्स का आपस में कंपैरिजन हो कि इनका परफॉर्मेंस या इनका जो भी पे स्केल है लास्ट टाइम में किस किस फ्लो में रहा है, ठीक है, हु इज परफॉर्मिंग बेटर देन हु। तो इस तरह के हमें बहुत से अलग अलग से पैटर्न्स मिल सकते हैं। बट रिक्वायर्ड क्या होगा, क्योंकि हमने ईआरपी जो है इम्प्लीमेंट कब की है, 2020 में, ठीक है, लेकिन डेटा हमें कब तक का चाहिए, 2015 से लेकर 2020 तक का, या मे बी 2019 तक का डेटा चाहिए। तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपसे क्वेश्चन है मेरा, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ईआरपी वेंडर की है कि वो पिछले 2015 से लेके 19 तक का डेटा जो है वो कैप्चर करेगा, या उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें वो डेटा जो है उसे प्रोवाइड करना है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डेटा, वेंडर और द ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली, राइट। तो अब ऑर्गेनाइजेशन ने जब ये डेटा देना है, हो सकता है उन्होंने कभी ऐसा कोई टेबल ही ना बनाया हो, दिस माइट बी पॉसिबल। तो उन्हें क्या करना होगा, दे हैव टू गो टू द अकाउंट सेक्शन, वहां से उनके पास ईयर वाइज 5-6 टेबल होंगे जिनमें हर एक पर्टिकुलर पर्सन के पेमेंट स्लिप्स होंगी मे बी, या फिर कुछ ऐसे टेबल लेजर एंट्रीज होंगी जहां पे वो लोग वो डेटा रखते हैं। सो फर्स्टली वी हैव टू कंबाइन ऑल दोज 5 टेबल्स एंड दैट विल बी अ रिक्वायर्ड डेटा जो कि हमें उन वेंडर्स को देना है। अब लेबर कॉस्ट कहाँ पे चाहिए, अब उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई ना कोई ऐसे पर्सन इन्वॉल्व करने पड़ेंगे फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट जो कि उनके इन सारे टेबल्स को उस पैटर्न में, उस फॉर्मेट में उस वेंडर को दे जिस पैटर्न में उसे चाहिए। So that is our labor cost that may be involved in the type of that input which is required to that vendor to create a new feature for your ERP system, right? And so am I clear now? Yes, further we can have a certain comparisons by graphical representation that we can give। इसी इसी तरीके के एनालिसिस जो होते हैं वो जनरली हमारे प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हैं। ईआरपी सिस्टम डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वी आर ऑल्सो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, हमें भी कुछ ना कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने हैं और उनमें से वी हैव टू फाइंड कि हम कौन कौन से कॉलम्स को उठाकर कौन से इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के साथ एक नया ग्राफ, एक नया एनालिसिस जो है बता सकते हैं। दिस इज द जॉब ऑफ एनी डेटा एनालिटिक्स पर्सन, जो कि इनिशियल प्रीवियस बहुत सारे डेटा में से नए नए पैटर्न्स उठाता है, जहां से हमें पता चलता है किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के रिलेटेड। ओके, so labor cost is that data that is actually required in that time, which is not prepared before in that organization, but now as you want that ERP vendor to provide you certain services, so he will actually require some input from organization side,
So organization had to deploy certain human resources, which will devote their maybe 1 week, maybe 2 weeks, 15 days to create that data actually from the raw data that they are actually having, to create a new data from that so that we can give it to the vendors and then they can give us interesting features that we want from them. तो ये हमारी लेबर कॉस्ट होगी जो कि कभी भी कोई कंपनी एक्चुअली स्टार्टिंग में नहीं सोचेगी, बट इवेंचुअली दे हैव टू फेस इट समवेयर. Okay, so generally we have to get some IT related staff which are familiar with the databases and all, and they can provide that type of expertise that they can arrange that data in a particular form which is required. नाउ द सेकेंड वन, ट्रेनिंग कॉस्ट. ट्रेनिंग कॉस्ट में हमें पता है कि हमारे पास जब भी ट्रेनिंग्स इन्वॉल्व होती हैं दैट विल बी इन टू फॉर्म्स. ठीक है, एक है जो आप जब भी आप लोग यूज करने वाले उस ईआरपी सिस्टम को, अगर मैं बात कर रही हूँ कि मेरे पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, मेरे पास हायर लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, या फिर मेरे पास एनालिस्ट, टेस्टर या प्रोग्रामर्स टाइप के लोग हैं, तो मेरे पास 3 लेवल की अथॉरिटीज आ रही हैं. तीनों के पास जब भी वो लोग अपने ईआरपी में लॉग इन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह की एंट्रीज के लिए रिक्वेस्ट आएंगी, डिफरेंट तरह के फॉर्म्स या सर्विसेज वहां पे खुलेंगे, राइट. तो हर एक को जो भी उन्हें सर्विसेज शो हो रही हैं उनके रिलेटेड एक ट्रेनिंग मिलना जरूरी है. ठीक है, दिस माइट बी पॉसिबल कि एक कंपनी ने पहले इस चीज को कंसिडर ही नहीं किया कि नो वी डू नॉट रिक्वायर सच ट्रेनिंग, यू कैन एक्सक्लूड इट. We know that our person can usually interact with that interface and give us the required output that we want. They may handle that itself, but by the time or lately ये चीज हो कब सकती है, क्योंकि जैसे ही री इंजीनियरिंग का प्रोसेस, गैप एनालिसिस का प्रोसेस बार बार होता रहा, हम लोगों ने नए नए गैप्स एनालाइज किए और नई नई सर्विसेज डाल दी और सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल, इतना अच्छा बन गया कि अब उसके लिए एक ट्रेनिंग देना जरूरी है. अगर एक सिंपल सिस्टम होता, उसे समझना भी आसान होता और मे बी उसे यूज करना भी इजी हो जाता उन पर्सनल्स के लिए. लेकिन अब हो सकता है कि वहां पर कुछ नई ट्रेनिंग की जरूरत आ जाए जो कि उन्हें सिखानी जरूरी हो. सो दैट ट्रेनिंग फर्दर, the ERP implementation training that is provided to some persons of the organization and provided by the vendors. Why? Because they can handle some small queries related to the ERP or ERP, I would say ERP queries that generally occur, some FAQs. So that type of training is provided to that particular team which is interested and which have their high command on the इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो इस तरह की ट्रेनिंग्स जो हैं वो हमें चाहिए. सो ऑल रिटन ओवर हियर इज इन सम फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल, कि आप एक एग्जाम्पल ले लो. ईआरपी में हर एक चीज को लिखने का एक बेस्ट तरीका है, या तो उस चीज का एक फ्लो बना लीजिए, फ्लो डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर कोई भी एक एग्जाम्पल लेके जस्ट कीप ऑन गोइंग विद द फ्लो एंड एक्सप्लेन दैट थिंग. दैट वुड बी बेटर. ओके, सो देन वी से एक और तरह की ट्रेनिंग हमारे पास आ सकती है विच इज रिटन ओवर हियर इन द फोर्थ पॉइंट, कि ये हो सकता है कि हम लोगों ने ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया, बाय द टाइम वी हैव कंप्लीटेड आवर ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, हमें हो सकता है 1 ईयर, 1.5 ईयर और मे बी 2 ईयर्स तक का टाइम जो है वो हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया. और उन 2 ईयर्स के टाइम में ये हो सकता है कि हमारे पास कुछ नए एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में आए, या फिर कुछ पुराने एम्प्लॉयज जो थे उनका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, उनके लेवल्स चेंज हो गए, कोई कोई भी ऐसी चीज, मतलब देयर इज अ मिसमैच इन द हायरार्की which we have observed when we have started to implement that system. तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये कॉस्ट ये सोचा नहीं होगा कि जब मेरे पास एक नया पर्सन आ जाएगा, ना ही उसे बिजनेस के फ्लो के बारे में पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम होता कैसे है, ना ही उसने पहले कभी ईआरपी चलाया है ताकि वो इस सिस्टम को यूज कर सके. तो उस कंसर्न पर्सन्स को या फिर जिनका भी लेवल अपग्रेड हुआ है, उन्हें नए फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें टाइमली कुछ ना कुछ ट्रेनिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती हैं.
या फिर कुछ कंसल्टेंसीज दिलवानी पड़ती हैं उन पर्सन्स को, ताकि वो उस ईआरपी को यूज करने में क्या है, फ्लेक्सिबली उसे यूज कर सके, कंफर्टेबली यूज कर सके, और हमें टाइम टू टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिक्वायर्ड आउटपुट्स हैं वो दे सके. So that type of training cost may also involved. Then we came with testing, retesting, and testing again. Okay, now what is involved in this? Yes, आप लोगों को क्या लगता है कि इस चीज में क्या होगा? What type of cost will be involved in testing, retesting, and testing again? जब भी हमारे पास टेस्टिंग में कॉस्ट आती है, then we always talk about test cases. Yes, any answer from your side? What type of hidden cost will be involved in testing, retesting, and testing again phase? ओके, एक इस चीज को और थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं. हम लोग ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल में टेस्टिंग, रीटेस्टिंग के फेजेस जो हैं वो किस पर्टिकुलर फेज में या फ्रेम के अंदर इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं? Where do we face that testing, retesting phase? आप लोग पुराने प्रेजेंटेशंस जो है उन्हें रेफर कर सकते हो, और दोज हु रिमेम्बर दे कैन ऑल्सो टेल. हमारे पास एक ईआरपी लाइफ साइकिल में पूरे में एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे आप बार बार रीटेस्ट करते हो, बार बार आउटपुट्स आती हैं, फिर से कुछ चेंजेस होती हैं, फिर से रीटेस्ट होता है. यस, क्विकली, आई वांट आंसर्स. You can unmute or write in the chat box. Okay, that is the testing phase. If you guys remember, we have actually studied a cycle which is present there in your ERP implementation life cycle. इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल एक पूरा प्रोसेस है, उसके अंदर एक साइकिल आता है छोटा सा, जहाँ पे बार बार कुछ ना कुछ नए प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होते हैं, उन पे काम होता है, उन्हें टेस्ट किया जाता है, फिर से चेंजेस होती हैं, फिर से रीटेस्ट होता है, उन्हीं चीजों पे बार बार. No, not maintenance. The term that we have discussed there in terms of ERP, वो था हमारा implementation cycle, जहाँ पे gap analysis हुआ, then we have worked on it, we have implemented again, we have tested, and then yes that one. तो वहां पर actually हुआ क्या, जैसे ही हम लोगों ने ये सब काम कर लिया, एंड वी केम आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन टू द टेस्टिंग फेज दैट यू हैव सेड. हम लोग जैसे ही टेस्टिंग फेज पर आए, तो हम लोगों ने उसे टेस्ट किया. एक प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए n नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हो सकते हैं. दैट जस्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम दैट इज गिवन टू दैट टीम, और I would say the efficiency of that team, the experience of that team that they are facing, कि उनके पास कितने टेस्ट केसेस इन्वॉल्व हैं, कितना एक्यूरेट है वो टीम उन उन चीजों को मैनेज करने के लिए. वो टेस्ट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग, इन द फॉर्म ऑफ लोड टेस्टिंग, इन द फॉर्म ऑफ योर स्केलेबिलिटी टेस्टिंग. व्हेनेवर यू स्केल योर सिस्टम, हाउ विल दिस परफॉर्म, इन द टर्म ऑफ टेस्ट केसेस कि आपने इनपुट कुछ अनरिक्वायर्ड इनपुट जो है, जो कि अनएक्सपेक्टेड इनपुट जो है वो उस चीज को दिया, हाउ विल इट रिएक्ट टू दैट. सो इस तरह के टेस्ट केसेस बनेंगे, एंड देन इट विल गिव अस दैट आउटपुट. अब ये जो टेस्ट केसेस हैं, ये हम लोग ईआरपी बनाने से पहले कभी डिसाइड ही नहीं कर सकते दैट देयर विल बी दिस अमाउंट ऑफ टेस्ट केसेस इन्वॉल्व.
ठीक है, तो वो टेस्ट केसेस will depend on the time that is given, one, and on the efficiency of the team which is actually handling those test cases. तो उन लोगों ने क्या किया, जैसे ही नए नए टेस्ट केसेस बने, दैट विल गेट रिजेक्टेड, गो टू द इम्प्लीमेंटेशन टीम अगेन, वो फिर से उस टेस्ट केस को सॉल्व करेंगे, फिर वो नया टेस्ट केस लगाएंगे, फिर से वापस जाएगा, फिर से इम्प्लीमेंट होगा, फिर से नया टेस्ट केस बनेगा, जब तक वो चीज एक परफेक्ट चीज बन नहीं जाती, परफेक्ट टेस्टिंग क्राइटेरिया से पास नहीं हो जाती, इट विल कीप ऑन साइक्लिंग ओवर देयर। तो इस तरह की जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट इंक्रीज कब होगी, हमारे टाइम के साथ, कि क्योंकि हम लोगों ने सारे के सारे टेस्ट को पास करना है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, दो ही तरीके से काम कर सकती है, या तो बोले कि मुझे ये सॉफ्टवेयर जो है वो इतने टाइम में चाहिए, ठीक है, यू कैन कॉम्प्रोमाइज, आई कैन कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, बट मुझे टाइमली ये प्रोजेक्ट चाहिए, एंड ओनली देन आई वुड से दैट यस दिस इज अ रिक्वायर्ड प्रोसेस। तो वैसे केसेस में एक ईआरपी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है कि हाँ जी, आपको आने वाले टाइम में मेंटेनेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी, द वेंडर कैन से दिस, एंड at those time you have to keen for the maintenance and some bug detection that you might face. Another thing is that the organization says, I want a perfect system, you can take as much as time that you want, ओके, बट अ मैक्सिमम टाइम लिमिट इज ऑलरेडी गिवन देयर। तो उस केस में जैसे ही टाइम इंक्रीज होगा, डिसाइडेड टाइम जो था जब ऑर्गेनाइजेशन ने वो बनाना शुरू किया वो था 1.5 साल, 1.5 years, पर क्योंकि हम लोगों ने और अच्छे से नए कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, नए टेस्ट्स लगा दिए, तो नई चेंजेस आने के बाद हम लोगों ने टाइम पीरियड एक्सपैंड कर दिया, लेट्स से टू 2 years, ठीक है। तो जो वो 6 month के लिए हम लोगों ने काम किया, वो मे बी कोई नया फंक्शन ऐड किया हो सकता है, वो मे बी उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शंस को और अच्छा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हो सकता है। तो क्योंकि टाइम इंक्रीज होगा, तो आपके रिसोर्सेज जो हैं उन्हें भी आपको पे करना होगा। every type of cost that is involved in those 1.5 years that may have eventually increased for 6 more months। तो इस तरह की जब आप टेस्टिंग रीटेस्टिंग के फेजेस को इंक्रीज करते जाते हो, तो बेसिकली प्रोजेक्ट के टाइम में इंक्रीज हो रहा है, और क्योंकि प्रोजेक्ट ज्यादा टाइम लेगा, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगी। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, देन द नेक्स्ट वन वी हैव री इंजीनियर्ड प्रोसेसेस। तो जनरली हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जब भी ये अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट या हिडन कॉस्ट आती हैं, ये उन्हीं प्रोसेसेस से आती हैं जो प्रोसेस एक लूप में चलते हैं, जो एक लूप में चलते हैं, जनरली उन्हीं चीजों में ये देखा जाता है। अब हमारे पास आते हैं कुछ री इंजीनियर्ड प्रोसेसेस। हम बोलते हैं कि जब भी आप बोलेंगे कि आपको एक पर्टिकुलर टेस्ट आपने क्लियर कर लिया है, लेकिन जैसे हमने बोला था, एक हमने बहुत पहले एक एग्जांपल लिया था कि बहुत ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी थी जिनका काम या जिनका वे of doing work was different before COVID, and after COVID they have eventually changed whole of their process, ठीक है। हम लोग एजुकेशन सिस्टम को ही देख सकते हैं, नाउ द पैटर्न हैज बीन चेंज्ड entirely। तो ऐसे टाइम पे अगर हम लोग ये सोचते कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और एक नया एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं जो कि इस ऑनलाइन सिस्टम के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सके, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो वी जस्ट ट्राई टू री इंजीनियर होल ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ स्टडी। जो भी आपकी स्टडी में इन्वॉल्व क्या है, आपको टीच करना है, आपको इवेल्युएट करना है, एंड देन based on that evaluation we have to teach you again, since you are actually uh, covering or you are actually uh, reaching that particular threshold value to which we want you to be, ठीक है। अब जैसे लेक्चर्स की ही बात है, लेक्चर है, आप एक दिन आते हो, नहीं आते, फिर हम आपको पिंग करते हैं विद योर अटेंडेंसेस,
और वो चीज एक्चुअली जरूरी होता है सो दैट यू विल बिकम रेगुलर एंड यू रीच दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ 75% अटेंडेंस। फर्दर आपके एमएसटीज, आपके क्लास टेस्ट, आपके क्विज हैं वो टाइमली होते हैं, बार बार होते हैं, just to ping you that you are lacking behind in this particular thing and you have to reach again. We will give you another chance and then you have to recover in that way. Or if you are doing well, you have to maintain that consistency all over. So ये जो required processes थे, इन्हीं चीजों को हम लोगों ने री-इंजीनियर कर लिया according to the online mode. आपके एग्जाम्स थे, एग्जाम्स का पैटर्न रिटन पैटर्न होता था इन द ऑफलाइन मोड. नाउ things have been observed that to provide that written papers and to surveillance that will not be possible. So उस केसेस में हम लोग क्या हो गया, ऑनलाइन क्विज, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस वो ज्यादा पॉपुलर हो गए, उस टाइप के प्रोसेसेस चेंज हो गए ताकि आपको उस तरीके से इवेलुएट किया जाए. ठीक है, फर्दर आने वाले टाइम में आपके क्विज जो है मे बी टाइम बेस्ड हो जाएं, अब टाइम बेस्ड नहीं होते. राइट, वी आर मैनुअली स्विचिंग ऑफ दोज मॉड्यूल्स. सो एक टाइम आ सकता है जब आपको 1 घंटे का पूरा टाइम दिया जाए बट योर पेपर इज ऑफ 30 मिनट्स ओनली. ठीक है, 60 मिनट्स का आपको टाइम है, पेपर सिर्फ 30 मिनट्स का है. अकॉर्डिंग टू योर नेटवर्क कनेक्शन यू विल बी लॉग इन वंस. At that time your timer will be getting on and exactly after 30 minutes it will just auto submit all of your answers that you have done and evaluate you accordingly. तो उस अकॉर्डिंग अगर हम अपने प्रोसेसेस को री इंजीनियर करते हैं तो तब हमारी कुछ ना कुछ कॉस्ट निकल के आती है. अब जैसे पहले सिस्टम चल रहा था, अगर हम बोलें एक सिंपल इवेलुएशन का, वो हम लोगों को अगर हम अपने कॉलेज ईआरपी सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें, आपके एमएसटीज नॉर्मली होते थे, नॉर्मल इवैल्यूएशन होता था ऑफलाइन, उसी चीज का एक रिजल्ट बनता था. लेकिन क्योंकि वो चीज ऑटोमेट हो गई है, नाउ आई रिक्वायर माय ईआरपी वेंडर्स कि आप लोग मुझे एक नया फीचर दें जहां पे हम लोग from the teacher end we can update, we can upload the question bank that may be of 50 questions or 100 questions. Further, your system has to do what, कि उन 100 क्वेश्चन में से 25 या 20 क्वेश्चंस रैंडमली उठा के किसी भी एक स्टूडेंट को दिए जाएं सो दैट वी कैन शफल दोज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है, सो ये एक टास्क है. जब शफल होके वो चले गए तो फिर मुझे ये भी चाहिए कि जिसका एक क्वेश्चन सेट रेडी हो गया है वो पर्टिकुलर पर्सन के साथ वहां पे टाइमर भी आ जाए ताकि वो उस टाइमर के अकॉर्डिंग उतने टाइम में हर एक इंडिविजुअल का एक ही टाइम पे 100 पीपल आर देयर हु आर एक्सेसिंग दैट कोड. सो दैट विल बी अ कम्प्लेक्सिटी फॉर द सिस्टम कि वो कैसे शफल करके क्वेश्चंस उठा के एक एक स्टूडेंट को दे रहा है, एक एक का सेशन टाइम रिकॉर्ड कर रहा है और आप लोगों का जो काउंटडाउन है ऑफ 30 मिनट्स उसे मेंटेन कर रहा है. देन इट विल ऑटोमेटिकली री व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट submit your paper based on your choices that you have made. So ये सारा चीज जो है इसने इवेंचुअली मेरा एक फुल फ्लेज मॉड्यूल इंक्रीज कर दिया जो कि मुझे सिस्टम के अंदर एम्बेड करना होगा ड्यू टू एनी एक्सटर्नल रीजंस में भी. तो इस चीज को हम बोलते हैं री इंजीनियरिंग. हम लोगों ने कोई नया प्रोसेस नहीं इंक्लूड किया, सिर्फ बेस्ड ऑन सम सिचुएशंस और बेस्ड ऑन द वी कैन से परफॉर्मेंस हैबिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए उन्होंने फेस किया कि अब हमें अपना इस मोड को चेंज कर लेना चाहिए ऑफलाइन टू ऑनलाइन. तो इसीलिए उन्होंने अपने प्रोसेस को एक स्टेप आगे लेके गए. दे हैव totally re-engineered whole of the process, keeping in mind that the MST has to be taken. In what way that mode has been just changed. So that is the re-engineered process. And इस चीज में क्योंकि एक entire module नया बनता है तो that may also increase in the cost. So next one, employee resistance to adopting a new ERP system. ये नॉर्मली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को फेस करती हैं कि जब भी हम लोग देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोगों को एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ काम करने में कंफर्टेबल है. दिस हैज बीन मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन द बैंक्स व्हेन दे हैव बीन स्विच टू द ऑटोमेटेड सिस्टम्स. बैंक्स में पहले सारा काम रिटन अकाउंट बुक्स,
में उन फॉर्म्स में होता था कि हमारे पास सारी एंट्रीज रिटन अवेलेबल होंगी। ठीक है, जैसे ही उन लोगों ने ऑटोमेशन का काम शुरू किया बिकॉज दे वांट टू सेंट्रलाइज ईच बैंक so that every bank a branch should be connected to a centralized part and so that they can manage all of the things। तो उस टाइम पे क्या हुआ, बैंक एम्प्लॉयज जो है वो अगर ये बोले कि वाई अस, हम लोग ये क्यों करें, कि हम लोगों को पता है कि हमें अपने लेजर्स में या अपने अकाउंट बुक्स में कैसे एंट्री करनी है, वी आर कंफर्टेबल इन डूइंग दैट। आप हमें बोल रहे हो कि आप अपना पीसी खोलिए, वहां पे एक फॉर्म खोलिए, उसे सीखिए और वहां पर एंट्री कीजिए, विच एनीवन, अगर आप ए से बी सिस्टम पे शिफ्ट करते हो, मोड से शिफ्ट करते हो, कोई भी पर्सन है उसे एक बार तो है क्या है, एक डिस्कम्फर्ट आएगा, जरूर आएगा कि हम लोग ऐसे काम क्यों करें, हमें नहीं करना। अब आप ही लोगों की अगर हम बात कर लें तो हम लोग पहले रिटन असाइनमेंट्स करते थे, ठीक है, लेकिन रिटन असाइनमेंट से जब कुछ लोगों को बोला गया कि नहीं, अब ड्यू टू ऑनलाइन सिस्टम आप लोग क्या करो, अपनी गूगल डॉक्स बना के वहां पे असाइनमेंट सबमिट करवाओ, तो बहुत सारे लोग थे जिनको कुछ ना कुछ इशू आ रहा था। मे बी they say that we don't have our online systems where we can write it, कि बाकी हमें कंटेंट लेने में दिक्कत आ रही है। कुछ ऐसे भी थे जो कहते थे कि ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ऑन पेपर्स ड्यू टू लॉकडाउन we are not having that facility to get those papers, those A4 sheets or maybe the notebooks, we are not having facility to get that, so we can easily transform to that mode also। So both type of cases are there। सो ऐसे केसेस में जहां पर आपको कुछ एक्सटर्नल काउंसलिंग या फिर कुछ कंसल्टेंसी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को दिलवानी पड़ती है टू मोटिवेट देम टू अडॉप्ट द चेंज। आप लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा इस चीज के फायदे बताएंगे कि इससे आपका काम इवेंचुअली आगे जाकर, आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो आप बाद में मैन्युअली, हो सकता है आप लोग अपने लेजर से वहां से कंपेयर करके एक्सेल शीट्स में बनाते हो, लेकिन एक बार जब आपने एंट्री डायरेक्ट कंप्यूटर में कर दी तो बहुत सारे ऐसे एनालिसिस हैं जो हम डायरेक्टली वहां से निकाल सकते हैं, तो बाद में आने वाले टाइम में जाके ये आपको फायदे देंगे। अगर हम ऐसे इम्पोर्टेंसेस उन्हें बताएंगे, सो दैट टाइप ऑफ कंसल्टेंसी ऑल्सो नीड सम कॉस्ट। हमें कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को कॉल करना पड़ेगा जो कि उन्हें कुछ ना कुछ मोटिवेट कर सके इन चीजों के बारे में। सो वेन एवर योर एम्प्लॉय शोज एनी रेजिस्टेंस, वी हैव टू give certain type of trainings or consultancies so that they can adopt that change। तो वहां पर टाइम भी वेस्ट होगा पहले तो ड्यूरिंग द डिस्कशन, and then while providing the consultancy, then again the time will be involved plus the consultancy cost also। तो ये बहुत मेजर कॉस्ट है जो कि जनरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट नहीं करेगी, बट इफ दे हैव टू फेस सच थिंग, तो बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे जाके हम सारी ईआरपी को एकदम से क्या है फेल नहीं होने दे सकते। सो वी हैव टू हायर कंसल्टेंट्स एंड देन वी हैव टू टेक आवर ईआरपी टू अ प्रॉफिटेबल स्टेज, टू अ सक्सेस स्टेज। हाँ जी, इज इट क्लियर टिल नाउ? यस एवरीवन, अगर आप लोगों को लगे कहीं पे भी किसी पॉइंट पे, देन ऑलवेज पिंग मैसेज की कर दिया करो या फिर यू कैन अनम्यूट एंड से इट। देन वी हैव कस्टमाइजेशन एंड इंटीग्रेशन। जब भी कस्टमाइज का मतलब है कि हम लोगों को कोई भी ऐसा सिस्टम बनाना है, कोई ऐसा फीचर बनाना है, ये हमने डिस्कस किया था एक्चुअली व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द इनिशियल फेजेस पोस्ट प्री प्रोसेसिंग फेजेस ऑफ आर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी साइकिल। जब आप लोग सिर्फ वेंडर्स को डिसाइड करते हैं इन बेसिस पे कि कौन सा वेंडर ऑलरेडी ऐसे फीचर्स दे रहा है जो कि मेरे लिए रिक्वायर्ड है, प्लस कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो कि कस्टमाइजेबल होंगे, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, आपके वर्किंग कल्चर के अकॉर्डिंग आप लोगों को वो वेंडर जो है वो डेवलप करके देंगे। तो वैसे फीचर्स को बनाने के लिए एक एडिशनल टाइम चाहिए। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी कोई ऐसा टूल यूज कर रही है जो कि इंटीग्रेट हो सकता है ईआरपी सिस्टम के साथ, टू इंटीग्रेट देम,
to make them compatible with each other, उसके लिए टाइम चाहिए। तो इस तरह की कॉस्ट जो है वो भी अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट कम कम अप हो सकती हैं जब भी आप एक ईआरपी सिस्टम बनाएंगे, बिकॉज टू मेक एनी कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट मे टेक इट्स टाइम कैन नॉट बी प्री कैलकुलेटेड। वो टाइम जो है हम लोग एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, बट देयर माइट ऑलवेज बी अ स्लाइट इंक्रीज इन दैट टाइम पीरियड। एंड देन वी केम अप विद कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। हम लोगों ने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे दी एंड एवरीथिंग इज देयर। वन मोर थिंग दैट मे कम इज दैट व्हाट इफ योर कस्टमर मे गेट डिससेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ द सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग नाउ। हम लोगों ने ट्रेनिंग जो है वो अपने एम्प्लॉयज को दे सकते हैं टाइमली, क्योंकि उन लोगों को आप इकट्ठे जगह पे बिठाकर वो चीज सिखा सकते हो। यू कैन हायर सम पर्सन, सम ट्रेनर्स फॉर देम। लेकिन जो भी अब आपके पास कस्टमर्स आएंगे, इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग, अगर ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज की ही बात करें, सभी को आदत है कि अगर हम बैंक में जाएंगे वो काम करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, वी नो दिस। इवेंचुअली अगर एक दिन हम ये कर दें कि बैंक्स, ऑफलाइन बैंक्स वाली कोई फैसिलिटी ही नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, most of the customers are of that I would say group who do not know how to operate that system online, how to deal with the terms that the online banking system use. So उस केसेस में हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए कि उनके लिए कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसे मैनुअल्स बनाए जाएं जहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाए फर्दर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस विच दे आर कंफर्टेबल इन। So what type of translators you need, what type of media coverage you need, and then what will be the different promotional methods for you to reach out those people and train them in different manners. So to deal with that, that might also come when you are dealing with the ERP system. Then hope for cost reduction. Now if we say that whenever we think, we are thinking that we have developed a system and we have decided one of its cost, and we are trying to just exchange it with some of the services that we already have. So that is some type of hoped for cost reduction, when we actually try to uh, just exchange the services that which the ERP is providing to us with those services which we can say we can compromise with. So that type of services might not be visible, in the terms that आपको पहले ये लगेगा कि हाँ, यहाँ कोई बात नहीं, इस तरह के एनालिसिस के बदले में अगर हम लोग वो चीज भी कर लें, दैट माइट बी सफिशिएंट, क्योंकि ये इवेंचुअली हमारा जो ईआरपी कॉस्ट है उसे रिड्यूस कर देगा। बट लेटर ऑन द टाइम यू विल रियलाइज कि इस तरह के एनालिसिस भी हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए जरूरी हो, तो इवेंचुअली आपको वो चीज इम्प्लीमेंट करवानी पड़ जाए। So that might also result in an hidden cost when we are just trying to reduce the cost of ERP system, just for the sake of reducing the cost only. हम लोगों ने सिर्फ इसीलिए हम लोगों ने फीचर्स को निग्लेक्ट कर दिया just because of this reason कि we want to reduce the cost. तो इवेंचुअली अगर हमें वो फीचर्स फिर से ऐड करने ही पड़ते हैं, तो that might also create a problem in customization. Then your ongoing support and maintenance cost, this is always there. जब भी आपको मेंटेनेंस करवाना है तो any hardware cost, any hardware problem that might occur in the system, that might be due to any weather conditions, any mishappening at the database storage place. So that sort of things are unpredictable, we cannot say anything about it. And if they require the maintenance, then we have to give the maintenance at that point. So कोई भी आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है या कोई भी सपोर्ट कॉस्ट है, कोई बग डिटेक्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कोई भी आपको एक आपके डेटाबेस जहां पर भी स्टोर्ड है, जहां भी आपका वेयर हाउस है, उस जगह पे कोई भी फिजिकली या हार्डवेयर रिलेटेड कोई इशू आता है, इफ यू वांट टू मेंटेन दैट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन,
after the complete implementation, then you have to again recall the whole team of ERP vendors and they will work on it, and that will eventually require some additional cost which is not there present in your contract with that ERP vendor. So that might also result in some hidden cost involved. So we are done with the hidden cost that are involved in the ERP implementation. आप लोग इनमें से कुछ और ERP hidden cost जो है वो भी यहाँ पे include करके लिख सकते हो, but these are some of the hidden costs which usually occur. Only those have been discussed by us today. Okay, any doubts, anyone? Now we will just take the attendance and then you guys can leave. Okay, till now the attendance is getting marked. Anyone is having any doubt, then you can tell me. मैम मेरी पीछे अटेंडेंस नहीं लगी हुई. Who's this? लक्ष्य. Okay, Lakshya, we will check it. All right. Okay, I will just speak out your names and those who are left can mark their attendance afterwards. Okay, Abu Asim, these are the name of students who are present. Abu Asim, Ajit, Amit 535 and 536, Anuj, Akib, Gaurav, Golu, Gurpreet, Harleen, Harvinder, Jagrup, Jobraj, Kavalpreet, Kunal 576 and 77, Lakshay, Manoj 83, MD Rahmat, I guess, and Mohit, Monica, Muskan, Nazdeep, Navdeep, 593, Neeraj, Pallavi. मैम मैं भी 618 का नहीं आप लगा एक में आप वेट कीजिए, मैं बाद में नोट करती हूँ. पल्लवी, प्रवीण, पवन 601, प्रत्यूष, राजेश 610, ऋतिक, रिया, सलमान, संजीव, शाहिद 627, शामीम, शार्दुल, शिवांशु, सुनील, विजय, then आंचल, लक्ष्मण, सांची, हरप्रीत, कुलदीप, मनजिंदर, मनदीप, पलक, प्रियंका, प्रगति and प्रवीण कुमार. मैम 530 नंबर. 530. अमन कुमार. 633 मैम. 633. मैम 618 18. 633 मैम 633 done. 618 done. 644. 644. Ma'am, 637. 637. 596. 532. 596. 638. 542. 638 and 542. Ma'am, 640. 542. 532. 542 done. Next. 525. 6602 Ma'am, 631. 6682. 0202 02. Okay, Prashant. 631. 631. Ma'am, 522. 524. Okay. हम 390. 24 मैम 94. 594. Okay, जी. 583.
583. हो गया। ओके Thank ओके, you. आप मुझे ये बताइए 594 है एंड 524, 532. 532. 532, मैम 355. 355, 583 पे लगा हुआ है ऊपर। I can leave the. आपने दिखा दीजिए। 356. 583 is done. Yes, next. Ma'am, 640. 640, Yes, ma'am. 524, madam. 356. ये है कौन? 524, your name please. Yes, 524. 524 Ma'am 356. Dilip. 356, okay. 528 भी लगा Ma'am 528 359 Hitesh. Done. Yes. Okay. Okay, and ठीक है, जिन लोगों की अटेंडेंस होगी दे कैन लीव। एंड लक्ष्य वाज टॉकिंग अबाउट, लक्ष्य आप मुझे डे बता दीजिए किस दिन की अटेंडेंस नहीं लगी, इफ यू आर देयर। यस, लक्ष्य, आर यू देयर? आई थिंक ही लेफ्ट। ओके, सो बाकी लोगों की अटेंडेंस हो गई है? ऑल राइट, थैंक यू देन।